Hello, my dear students. Today I am starting a very important topic. It is conditional probability. See, as the word says, conditional means we are given some important condition. What is that then? Let A and B are two events associated with a random experiment. Then, probability of occurrence of A under the condition B has already occurred. This is important and PB is not equal to 0. So what is PA upon B? Means probability of happening of A when B has happened, that is PA intersection B upon PB. And if I want to write probability of occurrence of B when A has already happened, then that will be PA intersection B upon PA. See, look here, this is very important and easy to learn. अगर पी ए अपॉन बी लिखना है, डिनोमिनेटर में बी है तो यहाँ पी बी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर पी आ जाएगा. तो दिस वे यू विल लर्न दिस. दीज आर द टू फॉर्मूला, even only one formula is here which will help us to find out all the problems. Let's move for the problem number 1. It is if two events, see, two events A and B are such that PA is equal to 1 by 2, PB is equal to 1 by 3 and PA intersection B is equal to 1 by 4. So find out these all. ये आपको find out करना है. So for this, see, look at this. Let me solve. PA upon B. What is PA upon B? PA upon B. This is equal to, see, we know this. This is PA intersection B upon PB. डिनोमिनेटर में B है तो कितना आएगा PB. What is PA intersection B? This is 1 by 4. 1 by 4 upon 1 by 3. तो the answer is 3 by 4 of first part. Second part PA dash upon B. अब देखो, अगर PA dash upon B निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा. See, suppose I want to write PA dash upon B second part. तो PA dash upon B. Let me take PA dash upon B. ये PA dash intersection B upon PB हो जाएगा. Now how to find this PA dash intersection B? See, look here. A dash intersection B. If this is A and this is B, then what is A dash? A से बाहर, outside A, everything is A dash. And अगर B के साथ intersection करना है तो this is only this part. इतना ही पार्ट होगा जो चेक है, ये जिसमें चेक बन गया यही पार्ट है. व्हाट इज दिस? ये है कितना, देखो ये बी में से दिस इज इक्वल टू पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी में से क्या सेपरेट किया है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको सेपरेट कर दिया है. ऑल राइट. सो व्हाट विल बी माई आंसर? माई आंसर विल बी पी ए डैश अपॉन बी will be equal to PB. What is PB? PB minus PA intersection B whole upon PB. Easily I can replace these values over here. Now go for this next part. I want to find PA dash upon B dash. What is PA dash upon P dash? See, PA dash upon B dash will be how much? This will be PA dash intersection B dash upon PB dash. Very important. All right. What is A dash now? What is A dash intersection B dash? जो A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, A और B दोनों के बाहर ये है. This is whole A dash. A से बाहर सब कुछ A dash और B से बाहर B dash. ये A से बाहर का था, B से आउटसाइड B, दिस होल इज B डैश. सो इंटरसेक्शन में चेक वाला पार्ट है. दिस इज व्हाट, 1 माइनस पी ए यूनियन B अपॉन 1 माइनस पी बी. आसानी से आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, व्हाट इज पी ए यूनियन B? दिस इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन B. पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आप पहले कर चुके हैं. 1 माइनस पी बी, रिप्लेस द
values and you will get the answer. Now what about next? See, next question is also exactly same, बिल्कुल यही केस है. इसमें A fails upon B fails means आपको क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, दिस वन P A बार अपॉन B बार फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकेंड पार्ट में P A fails alone. A fails alone का मतलब होता है A fails alone को I will explain this. See, first part you can do and second part A fails alone का मीनिंग क्या है. What is A fails alone? This one. If this is A and this is B, so this one, this is A alone. A fails alone का मतलब A माइनस A इंटरसेक्शन B. ये पार्ट आपको A डैश लिया है इसने, सबको पूरा A दिखा नहीं रहा है किसी को भी. दिस इज A डैश एंड दिस इज B. जितना भी सेट्स हैं ये सारे A डैश में हैं, तो इजीली यू कैन फाइंड इट यूजिंग सिंपली द फॉर्मूला. Let's move for the word problems. Now this is very important. See, look here. 10 cards are from 1 to 10 placed in a box. क्या कर दिया है, एक बॉक्स में उसको मिक्सअप कर दिया है. 1 card is drawn at random. अब देखो, it is known that, given क्या है, it is known that number of the card is greater than 3. Find the probability that is an even number. अब सबसे पहले देखो गिवन कंडीशन क्या है, मैं आपको ये बताऊँ सिंपल सी डेफिनेशन में. आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लेस A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B, ऐसा कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. व्हाट इज़ नोन, नोन क्या है, इसको मैं B लिख देती हूँ. ठीक है, सिंपल B लिख देती हूँ. नंबर ग्रेटर देन 3 मीन्स 4 5 6 7 8 9 10. मतलब हमारा कार्ड इन नंबर में से किसी भी नंबर का आया होगा, नंबर ग्रेटर देन 3 इनमें से. अब इसके अंडर इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इवन नंबर है. तो दीज विल बी माई फेवरेबल केसेज एंड दिस इज द टोटल सैम्पल स्पेस फॉर मी. दीज आर 7, 1 2 3 1 2 3 7 है ये. ठीक है, 7B इज द फेवरेबल केस. मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, नो नीड टू राइट होल द फॉर्मूला. ऑलवेज इतना ज़्यादा नहीं होता कि फॉर्मूला लिखते हुए चले जाएं हम. तो व्हाट आर द फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस हैं 4 एंड व्हाट इज द टोटल सैम्पल स्पेस 7. सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, PA अपॉन B, एज फॉर इवन नंबर्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 7. कुछ भी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो इवेंट हमारे फेवर में नहीं है, लाइक 1 2 3 हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि उसने पहले ही हमें बता दिया कि जो कार्ड है उसका नंबर ग्रेटर देन 4 है. तो ग्रेटर देन 3 है, तो लेस देन 3 में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है. दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. अगेन वेरी गुड. देखो फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इज हियर, गिवन दैट द नंबर अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट. बहुत अच्छा है. 2 dice are different. Find the probability that the event sum is 4. event क्या है, the sum is 4 on the dice. sum 2 है उन डाइस में. अब आपको गिवन क्या है, देखो गिवन को लेट मी राइट B में क्या है, नंबर ऑन द डाइस आर डिफरेंट. मतलब 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 से 6 तक होगा. तो ये कितने हो जाते हैं टोटल ये हो जाते हैं 30, क्योंकि 6 कौन से केसेज हैं, 1 1 2 2 3 3 से 6 6 तक, ये 6 केसेज हैं. दीज केसेज आई हैव नॉट टू कंसिडर, बिकॉज जो भी नंबर उसमें आया उसने मुझे पहले ही बता दिया कि नंबर आर डिफरेंट. इट मीन्स मेरे पास कौन से सेट्स आए होंगे, 30, ये वाले सेट. अब इसके अंडर इन 30 में सम 4 वाले कितने केसेज होंगे, इनके अंडर सम 4 वाले सिर्फ 2 केसेज हैं. कौन कौन से, ए इज इक्वल टू कौन से केसेज आ जाएंगे, 1 3 एंड 3 1, क्योंकि बाकी तो एक और केस होता है कौन सा 4 आने का, 2 2 तो यहाँ आ जाएगा, तो वो हमारे सैम्पल स्पेस में नहीं आया होगा. अब सी अगेन अंडरस्टैंड दिस, टोटल सैम्पल स्पेस कौन सा लेना है, टोटल सैम्पल स्पेस हमें लेना है जो गिवन है,
वो हमारे लिए टोटल सैंपल स्पेस है। अब उसके अंदर हमें अपने फेवरेबल केसेस को फाइंड आउट करना है। देखो टोटल सैंपल स्पेस, वैसे तो अगर आप 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं 36, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर द 36 केसेस। व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज द नंबर ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट, इसलिए ये वाले केस मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे पास सिर्फ 30 केस आएंगे। तो दिस विल बी द टोटल सैंपल स्पेस फॉर मी एंड what आर द फेवरेबल केसेस? दीज आर द फेवरेबल केसेस। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/30, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/30। Next question. Look at the next question. Again, very good question. Black die and red die are rolled. Find the probability of obtaining sum greater than 9, given that black die resulted as 5. देखो probability of obtaining sum greater than 9 when black die resulted in 5. ब्लैक डाई में क्या दिखाता है 5. 2 डाइस आर ब्लैक डाई एंड रेड डाइस आर रोल्ड, ये है। अब 2 डाइस को रोल किया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी? सम ग्रेटर देन 9, गिवन क्या है? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। बहुत ही आसान सा है ये। देखो ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब ब्लैक डाई में 5 है, हमें गिवन था ब्लैक डाई एंड रेड डाई। अब ब्लैक डाइस में सिर्फ 5 है, इसमें 5 आना है, इसमें 1 आ सकता था, इसमें 5 है, इसमें 2 हो सकता था, 5 के साथ 3 हो सकता था, 5 के साथ 4 हो सकता था, 5 के साथ 5 हो सकता था और 5 के साथ 6 हो सकता था। दीज आर द टोटल सैम्पल स्पेस फॉर मी। बाकी केसेस मुझे फाइंड नहीं करने हैं, नहीं देखने हैं। क्यों नहीं देखने हैं? क्योंकि उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि ब्लैक डाइस में तो 5 ही आना है। रेड डाइस के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए रेड डाइस में कुछ भी आ सकता था। तो व्हाट इज द टोटल सैम्पल स्पेस फॉर मी? 6। एंड व्हाट आर द केसेस? सम ग्रेटर देन 9। अब सम ग्रेटर देन 9 के इसमें 2 ही केस हैं। कौन से? 5 और 5 6। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? दिस इज 2/6। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सो दिस वे दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी ईजी, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। Find the probability of obtaining sum 8 given that red die resulted number less than 4. अब देखो red die resulted number less than 4, ये है। रेड डाई में बोलता है 4 से कम आना है, देन 4 से लेस आना है। तो रेड डाई में क्या क्या आ सकता था? रेड डाइस में देखो 4 से कम आना है, तो रेड डाइस में कितना आ सकता था? 1 आ सकता था। रेड डाइस में 2 आ सकता था, रेड डाइस में 3 आ सकता था। अब ब्लैक डाइस में क्या क्या आ सकता है? देखो अगर रेड में 1 है तो ब्लैक में 1 हो सकता था, 1 2 हो सकता था, 1 6 तक हो सकता था। ऐसे ही 2 1 हो सकता था, 2 2 हो सकता था और 2 से 6 तक हो सकता था। 3 1 3 2 3 से 6 तक हो सकता था। रेड डाइस में साफ साफ लिखा था इसने रेड डाई रिजल्टेड नंबर लेस देन 4। तो ये तो कंफर्म है कि रेड डाई में 1 2 या 3 होगा, लेकिन ब्लैक डाई के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। तो ब्लैक डाई में 1 से लेकर 6 तक हो सकता था। अब ऑब्टेनिंग सम 8, इसमें ये दीज टू, ये जितने भी टोटल सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में 8 सम 8 आने के कितने केसेस थे? देखो सम 8 आने का एक तो होगा 2 6, ठीक है, एंड नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट इज 3 5, 2 6 एंड 3 5, बस इतने ही होंगे और तो कोई होगा ही नहीं। 2 6 एंड 3 5। देन व्हाट इज माई प्रोबेबिलिटी? माई आंसर विल बी 2/18। सी दीज आर 18 केसेस, ये 18 थे, 6 एंड ये 6 हैं, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट।